مزاحیہ اداکار بشیر احمد بٹ عرف بشیر کوتر رحمت حق سپدمت ساگر کلچرل فورم ژکر پٹن اندر کلچرل فورم سمبل دلشاد کلچرل فورم نوگام آل انڈیا ریڈیو لسنرز گروپ کشمیر مہک ڈراماٹک کلب سری نگر اداکار گلفام بارجی تو ادبی مرکز کمرازک سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رفیق مسعودین تہندس فوت سپدنس پہ سٹھے دکھ بومت سن خبرن ہند شعبن تہ مرحوم سندس گزرنس پہ سٹھے دکھ بومت آخرس پہ موسمیات محکمہ کی پیش گوئی مطابق پگہ شام تام مز کن جائیں تو جوم صوبس مز اکثر جائن رود یا گگرائن ست رودلو پینک امکان سری نگر آواز دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس یل زن رات روزن کم کھت کم درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر پگہ آفتاب کھسن صبح 5 بجے تو 40 منٹ تو آفتاب لوس شام 7 بجے تو 35 منٹن پہ ست ووت خبرن ہند بلٹن اند ون بوزی تو اردو پہ خبر اس اجازت خدا حافظ. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اب آپ سنجیو کمار سے خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. لوک سبھا میں آپریشن سندور پر بحث شروع. وزیر دفاع نے آپریشن سندور کو دہشت گردی کے خلاف بھارت کے کڑے موقف کی ایک مؤثر اور فیصلہ کن مثال دیا قرار. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے کلیدی رول کو کیا اجاگر. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حیاتیاتی تنوع کو تحفظ دینے کے لیے اختراعی اقدامات کرنے کی ضرورت پر دیا زور. اور دھارا ہارون کے لدواس علاقے میں حفاظتی عملے کے ساتھ تصادم میں 3 ملیٹنٹ ہلاک. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. لوک سبھا میں آج پہلگام دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں بھارت کے فیصلہ کن اور کامیاب آپریشن سندور پر خصوصی بحث شروع ہوئی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بحث کی شروعات کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور محض ایک ملٹری کارروائی نہیں تھی بلکہ یہ آپریشن بھارت کی سالمیت، ملک کی شناخت اور دہشت گردی کے خلاف بھارت کے کڑے موقف کی ایک مؤثر اور فیصلہ کن مثال تھی. अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था. जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया. हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया. भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम तैयार हैं. اس سے پہلے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں حزب اختلاف کی طرف سے متعدد معاملات کو لے کر شور غل اور نعرہ بازی کی وجہ سے خلل پڑا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج IIT جموں میں نئے بی ٹیک، ایم ٹیک اور PhD طلباء کا خیر مقدم کرنے کے لیے منعقد کی گئی نو آرم پروگرام کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں کلیدی رول ادا کر سکتی ہے. LG نے اس دوران بی ٹیک اور ایم ٹیک طلباء کے لیے 4 نئے پروگراموں کا بھی آغاز کیا. LG نے آپریشن سندور کو مسلح افواج اور انجینئروں کی ایک بڑی جیت قرار دیا. میں مانتا ہوں کہ IITs نے دشکوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے چھیتر میں الیکھنیہ چھمتا کا وسرجن کیا ہے اور عام آدمی کے جیون کو کافی حد تک بڑے پیمانے پر پربھاوت کیا ہے. اس نے بھارت کو دنیا کے نالج پاور سینٹر کے روپ میں پنہ اپنا استھان پراپت کرنے میں مدد کی ہے اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بھی اتنت مہتوپورن یوگدان دیا ہے. مجھے وشواس ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ، آپ کی محنت سے آنے والے بھوشیہ میں بھارت انوویشن کا ضرور ہب بنے گا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے انوویشن تथा آپ جیسے ہونہار انجینئرز وکست بھارت کے نرمان میں بہت ہی مہتوپورن بھومکا نبھائیں گے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج راج بھون جموں میں راجوری میں پاکستان کی بلا اشتعال فائرنگ سے جاں بحق ہوئے راجوری کے ADDC ڈاکٹر راج کمار تھاپا کے گھر جا کر ان کی اہلیہ میناکشی کندن تھاپا اور ان کی بیٹی مریسا تھاپا سے ملاقات کی. لیفٹنٹ گورنر نے آنجہانی کی بیٹی کو ایک ایشورنس لیٹر سونپا جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسسٹنٹ لا آفیسر کے طور پر تعینات کیا جائے گا.
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भगवती नगर यात्री निवास से श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के पहले काफिले को रवाना किया। एलजी ने 1000 यात्रियों पर मुश्तमिल इस काफिले में शामिल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले यात्रियों के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभिनव थिएटर जम्मू से श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए कहा कि पुंछ जिला में कायम बुड्ढा अमरनाथ मंदिर रूहानी अहमियत का हामिल है। आज देश के कोने कोने से बूढ़ा अमरनाथ के जो श्रद्धालु और पूज्य संत यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति के भूमि गर्भ में हमेशा से मार्गदर्शन के लिए नए दृष्टिकोण, नई सोच, नए विचारों के अंकुर फूटते रहे हैं, जिन्होंने समाज को और राष्ट्र को सदैव नई दिशा दी है। आने वाले भविष्य में संस्कृति यही समृद्ध विरासत विकसित भारत का निर्माण भी तय करेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा की छड़ी मुबारक के कस्टोडियन महंत दीपेंद्र गिरी जी के मुताबिक सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में कल नाग पंचमी के मौके पर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में अगली छड़ी पूजन होगी। उन्होंने कहा है कि छड़ी मुबारक इस वक्त दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में मौजूद है, जहां श्रद्धालु रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक इसके दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से 4 अगस्त को पहलगाम के लिए रवाना होगी। दरी असना सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा एहसन तरीके पर जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 3,85,083 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरी असना जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 1,635 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी पहुंचा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ देरपा तरक्की और माहौलियात दोस्त इक़दामात को तक़वियत बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराते हुए कहा है कि हर शहर को सब्ज़ाज़ार बनाने के लिए एक अवामी तहरीक चलाई जानी चाहिए। जम्मू के अभिनव थिएटर में आज वन महोत्सव 2025 की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और आब हवा की तब्दीली से निमटने के लिए इख्तराई नौइयत के इक़दामात किए जाने चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में मरहूम मोहम्मद परवेज़ के घर जाकर उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला ने उन्हें हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में दारा हारवन के लिदवास इलाके में आज हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। चिनार कोर के एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है। IGP कश्मीर VK बिर्दी ने ऑपरेशन के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, It was an operation which is quite prolonged for a long time taken, and that is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies have been observed and seems to be neutralized. शुमाली कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लिदवास इलाके में ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए चिनार कोर को मुबारकबाद दी है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, परिवार, यार दोस्त, सरकार, सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है, एक दिशा में काम करना पड़ेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में एक टीवी, रेडियो और थिएटर आर्टिस्ट शहजाद शबीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, अपने बच्चों को हर तरह की सहूलियात फराहम रखने के बाद वालिदैन अपने आप को इन सब चीजों से बरी उल्ज़िम्मा समझते हैं। कभी अपने बच्चे की नॉर्मल लाइफ में तब्दीली की वजह जानने की कोशिश की, कभी इस बात की तरफ ध्यान गया कि उसका बच्चा अलग बंद कमरे में बैठने को पसंद क्यों करने लगा। कभी नहीं। हमारी बदनसीबी, बल्कि मैं कहूँगा सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरे के बच्चों पर नजर रखते हैं कि उनमें कोई बुराई तो नहीं है और अपने बच्चों को नजरअंदाज करते हैं। फिर जब मुसीबत दरवाजा खटखटाने लगती है तब जाके हम बेदार हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर नशे की इस लानत से अपने आप को, अपने शहर को, अपने मुल्क को आजाद करें।
पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज कुलगाम जिला में रेडवनी पाइन के मुश्ताक अहमद बगव नामी ड्रग स्मगलर की 19 लाख रुपए की जायदाद को अटैच कर दिया है। पुलिस ने अनंतनाग, कुलगाम और अवंतीपोरा में 4 ड्रग स्मगलरों को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज IIT जम्मू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े मुतल्लिकीन की मीटिंग का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर हुक्मरानी और देरपा तरक्याती अमल में इख्तिरारियत की अहमियत को उजागर किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा की सदारत में आज जम्मू में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो लोगों के साथ असेंबली चुनाव के दौरान किए गए वायदों को पूरा करने में बकौल उनके नाकाम हुई है। मीटिंग में असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और दीगर कई लीडरान मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर की नायब सदर प्रिया सेठी ने आज जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत की तारीफ की। माड़ हलके के बीजेपी MLA सुरेंद्र भगत ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अवामी दरबार का इनेकाद करके लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। दरी असना अरुण प्रभात ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर BJYM के सदर का ओहदा संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो लोगों बिलखुसूस नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 26वें योम तासीस के सिलसिले में आज श्रीनगर में पार्टी की तरफ से मुनाकिदा तकरीब में काफ़ी तादाद में पार्टी कारकुनों और लीडरों ने शिरकत की। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर कहा कि तकरीब में लोगों की बढ़ चढ़कर शिरकत से ये बात वाज़ह हो जाती है कि लोग उनके वालिद और पार्टी के बानी व साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के समाजी इंसाफ, अमन, वकार और हीलिंग टच पॉलिसी के नज़रिए की तौसीक करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कारकुनों और अवामी वफूद से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के पहले दिन से ही लोगों की राहत रसानी के काम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराने के लिए भी उनकी पार्टी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन है। आज के दिन हेपेटाइटिस बीमारी से बचने के लिए लाजमी एहतियाती तदाबीर और इसके इलाज मुआलजे से मुतल्लिक लोगों में बेदारी पैदा की जाती है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवूरा में इस दिन की मुनासबत से कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इस बारे में सिक्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज के दिन हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी लिवर क्लिनिक को इनाग्रेट किया। उस लिवर क्लिनिक का मुद्दा और मकसद ये है कि हम यहाँ अगले साल तक लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम शुरू करेंगे। लिवर को बहुत सारी चीजों से डैमेज होता है। कभी कभी हम मुझे दवाइयाँ खाते हैं जिनको हम हाई डोज में खाते हैं तो उससे लिवर खराब हो सकता है। दूसरा जो हमारे खाने पीने का ढंग होता है, जैसे अगर हम ज्यादा तेल, घी, चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खाते हैं उनसे हमारे लिवर में फैट होता है। तीसरा जो आज हेपेटाइटिस मनाया जाता है वो एक्चुअली वायरस इन्फेक्शन है हवाले से मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी कॉमनली लिवर को डैमेज करते हैं। तो जनरल पब्लिक के ये इंफॉर्मेशन है कि हम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं और फैट वाली चीजें कम करें, ज्यादा फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। आज कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ देने का आलमी दिन है। आज के दिन इस सरजमीन की जाज़बियत और वसाइल की गोनागोनियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के अज़्म को दोहराया जाता है। इस दिन की मुनासबत से आज कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिनमें जंगलात, जंगली हयात, नबातात गरज हयातियाती तनवु के हर एक उनसुर को महफूज रखने का अहद किया जा सकता है ताकि उन्हें आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखा जा सके। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुल्कगीर मुहिम वोकल फॉर लोकल के तहत आज से हफ्ता भर तक जारी रहने वाली नुमाइश आकांक्षा हाट का आगाज हो गया है।
नीति आयोग की ज़ेर क़यादत मुनक्किद हो रही इस मुहिम का मकसद मुल्क के एस्पिरेशनल ब्लॉक से मकामी मसनूआत, दस्तकारों, सेल्फ हेल्प ग्रुपों और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की तरवीज है। वादी के एक मारूफ मिज़ाया अदाकार बशीर अहमद भट्ट उर्फ बशीर कोतरू आज इंतकाल कर गए। सागर कल्चरल फोरम चुकुर पटन, इंदर कल्चरल फोरम सुंबल, दिलशाद कल्चरल फोरम नौगाम, ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स ग्रुप कश्मीर, महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर, अदाकार गुलफाम बारजी और अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त आला डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज़ के अमले ने भी मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उनकी जन्नत निशीनी के लिए दुआ की है। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने ACR पुंछ के दफ्तर में तैनात इस वक्त के मल्टीटास्किंग स्टाफ मोहम्मद जमील और कई दीगर अफराद के खिलाफ लगभग 56 लाख रुपए का खुर्द बुर्द करने की पादाश में केस दर्ज किया है। डायरेक्टर सेरीकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज सदव शोपियां का दौरा करके वहां गैर कानूनी तौर पर मलबरी पौधे काटने का बजाते खुद नोटिस लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तूत के पौधे गैर कानूनी तौर काटने से सरकारी असासों और गुंचे अब रेशम की सनत को नुकसान पहुंचता है। अर्थ साइंसेज के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज अर्थ साइंसेज की वजारत के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से तैयार की गई 14 बड़ी अशिया को लॉन्च किया। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में कहीं कहीं पर जबकि जम्मू सूबे में अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:40 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:35 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।